Hello students, myself Deepak Zade. Today in this lecture we'll discuss about how to find out position of centroid of composite lamina. ये आपका थर्ड थ्योरी वीडियो लेक्चर है, राइट. फर्स्ट लेक्चर में we discuss about centroid means what, blah blah वगैरह, राइट. Then how to find out position of centroid of simple components, x बार क्या रहता है, y बार क्या रहता है. सेकेंड वीडियो में we discuss about 5 components. Means in first and second lecture we discuss all 7 basic components. Which components? Rectangular lamina, right angle triangular lamina, next आया isosceles triangular lamina, next circular, semicircular, then quarter circular and sector. सबका position of centroid we discuss, right. अभी इन दिस सिंपल कॉम्पोनेंट्स मीन्स एक रेक्टेंगल में ट्रायंगल ऐड किया, किधर सर्कुलर होल डाल दिया, मीन्स एनी लैमिना विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सिंपल कॉम्पोनेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल कॉम्पोनेंट्स इज कॉल्ड एज व्हाट, कंपोजिट लैमिना. एग्जाम में एक्चुअली यू हैव टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ सेंटर्ड ऑफ कंपोजिट लैमिनास, राइट. एक सिंपल एक कॉम्पोनेंट I'll take, then I'll add something extra, we'll remove something and we'll try to find out where is the position of centroid. Suppose ये जो है this one is what, this is y axis, this one is what, ये x axis है, this is x, this one is what, y axis. अभी लैमिना is something like this, एक ऐसा इंक्लाइन, ये ऐसा किया, राइट, एंड इधर ये वर्टिकल डाल दिया. Means this is your lamina which is not our standard lamina, right. ये कुछ कॉम्बिनेशन है. कैसा कॉम्बिनेशन है? फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, विल डिवाइड गिवन लैमिना इन मिनिमम नंबर ऑफ सिंपल कॉम्पोनेंट्स. मीन्स इधर से एक अगर ऐसा वर्टिकल लाइन निकाला तो हाउ मेनी कॉम्पोनेंट्स आर देयर? इधर ट्रायंगल दिख रहा है, इधर रेक्टेंगल आया, करेक्ट. ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल. Means this lamina is a composite lamina which consists of 2 simple components, one right angle triangle and one is what, rectangular lamina. We listen carefully. I will give numbers to the component. Triangle means my component number 1, rectangle means what, component number 2. Now for individual component you know position of centroid. जैसे right angle triangle है, right, इसमें ये वर्टिकल साइड, हॉरिजेंटल साइड, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. फिर आपका जो सेंट्रॉइड रहता है ये सपोज C1 है, आपको पता है कि ये डिस्टेंस आपका b/3 रहेगा, ये डिस्टेंस आपका h/3 रहेगा, राइट. इम्पोर्टेंट क्या है, वंस विल रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड फॉर फर्स्ट कंपोनेंट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. ये सेंट्रॉइडल डिस्टेंस है, राइट. डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम वाई एक्सिस. सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है कॉल्ड एज व्हाट, सेंट्रॉइडल डिस्टेंस. ये कंपोनेंट 1 का सेंट्रॉइड है तो दिस वन इज रिटन एज व्हाट, x1. दिस इज व्हाट, x1. ऐसे डिस्टेंस ऑफ C1 वर्टिकल डिस्टेंस है ना फ्रॉम x एक्सिस, तो ये वर्टिकल है, फर्स्ट कंपोनेंट का है, विल रिप्रेजेंट एज व्हाट, y1. मीन्स वे लोकेटेड centroid for component number 1. For component number 2 centroid is located where rectangle का आपको पता है उसके सेंटर में रहता है. इसका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ये क्या डिस्टेंस रहेगा, x2. दिस इज व्हाट, x2. वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम x एक्सिस ये क्या हो जाएगा, y2. centroid, you know centroid means what, centroid is a point in the lamina through which total area of the lamina is assumed to be concentrated. Means जो C1 है point, centroid of triangle है, तो through this point will get which area, area of component 1, area of triangle passes through C1, area of rectangle passes through C2. Suppose A1 आपका है 100 mm square, A2 है सपोज 200 mm स्क्वायर. ये इंडिविजुअल कंपोनेंट का हुआ, ट्रायंगल का 100 mm स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का हुआ 200 mm square.
बट ये टोटल एरिया कितना हुआ, 100 प्लस 200 है तो 300 हुआ ना. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ कंपोजिट लैमिना. Means such a point you have to find out through which total area of the lamina passes. That one is unknown, right? That one you have to find out. C1, C2 is known, means what? Position of centroid of individual component you know. What is required? Position of centroid of composite lamina. C1 से 100 mm square पास हो रहा है, C2 से 200 mm पास हो रहा है, टोटल एरिया 300 है. ये किधर से पास होता है? वी डोंट नो वेयर इज अ पोजीशन. आई विल रिप्रेजेंट लाइक दिस कि बाबा ये मेरा कुछ तो ऐसा सेंट्रॉइड है कंपोजिट लैमिना का. तो ये जो एरिया है, दिस वन इज व्हाट? समेशन ऑफ एरिया. दो कंपोनेंट है तो A1 प्लस A2 हो जाएगा. 3 रहेगा तो A1 प्लस A2 प्लस A3 रहेगा. अभी इसका डिस्टेंस अज्यूम करते हैं फ्रॉम वाई एक्सिस. ये इसको बोलेंगे x बार. इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन. y1, y2, y3, y4 एंड सो ऑन. एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड इफ यू वांट टू फाइंड आउट मींस व्हाट? x बार एंड इट्स वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज व्हाट? y बार. क्लियर? अभी x बार y बार निकालना है. नाउ इन फिजिक्स 11-12 फिजिक्स यू आर डिस्कस अबाउट व्हाट? टॉर्क. फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा कुछ था, राइट? और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? मूवमेंट ऑफ फोर्स. फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इधर तो फोर्सेस नहीं है, इधर एरिया A1 है. A1 एरिया का मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस लेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट? x1. मीन्स प्रोडक्ट ऑफ A1 एंड x1 इज कॉल्ड एज व्हाट? मूवमेंट ऑफ एरिया A1 अबाउट वाई एक्सिस इज व्हाट? A1 x1. मूवमेंट ऑफ एरिया A2 अबाउट वाई एक्सिस, तो A2 ऐसा गया वर्टिकल तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस x2. A2 x2 रिप्रेजेंट्स व्हाट? मूवमेंट ऑफ एरिया A2 अबाउट वाई एक्सिस. थर्ड कंपोनेंट रहेगा तो A3 x3. ये सब मूवमेंट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का जो एरिया है उनका मूवमेंट ऐड करेंगे. मीन्स व्हाट? समेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल एरियाज ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट. समेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ areas of individual component about any axis say y is equal to what? Moment of total area about same axis, means summation of area into x bar. This one is also called as what? Varignon's theorem of moments, जो अपने रिजल्टेंट चैप्टर में रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल एंड जनरल में यूज करते हैं, राइट? तो टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड x बार व्हाट विल डू? सम ऑफ मूवमेंट्स. किसका मूवमेंट लेना है? सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल areas about which axis we are taken here? About say y axis, equal to what? Movement of total area. Movement of total area about y axis. सम ऑफ मूवमेंट्स लेना है. चलो, A1 का मूवमेंट क्या आया? A1 x1. A2 का मूवमेंट क्या आया? A2 x2. आई रिप्रेजेंटेड ओनली टू कंपोनेंट्स. तो थर्ड रहेगा तो A3 x3, फोर्थ रहेगा तो A4 x4 एंड कंटिन्यू, राइट? मूवमेंट ऑफ टोटल एरिया अबाउट y एक्सिस इज व्हाट? अबाउट y एक्सिस. क्या है? ये y एक्सिस है. ये समेशन ऑफ एरिया. डिस्टेंस क्या है? x बार में समेशन ऑफ एरिया इनटू x बार. तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एरिया इनटू x बार. क्या मिलेगा इधर से? x बार इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय summation of area. Summation of area means what? Addition of all area means what? A1 plus A2 and so on. तो x बार का फाइनली फॉर्मूला क्या आएगा? समेशन ऑफ ax अपॉन समेशन ऑफ एरिया. करेक्ट? ये होगा अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. y बार कैसा निकालेंगे? तो ये डिस्टेंस किधर से? x एक्सिस से. We'll take sum of moments of all
एरियाज ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम वेयर एक्स एक्सिस। तो ए जो सेंट्रोइड है इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, y1 मीन्स a1 y1। a2 का मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, a2 y2। थर्ड का क्या आएगा, a3 y3 एंड सो ऑन। मोमेंट ऑफ टोटल एरिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एरिया इनटू व्हाट, y बार। मीन्स sum of moments of all individual areas about x axis equal to moment of total area about x axis is what, a1 y1 plus a2 y2 and so on equal to summation of area into what, y bar। means y bar is what, a1 y1 plus a2 y2 plus so on divided by summation of area means what, a1 plus a2 and so on। means y bar is what, summation of ay upon summation of area। so using these two formulas we will solve some problem, around 7-8 problems definitely will solve, okay, clear। तो how will get this formula, डायरेक्टली अगर इक्वेशन दे देंगे तो किधर से पता नहीं चलता है, बेसिकली यूजिंग वेरिग्नॉन्स थ्योरम ऑफ मोमेंट। उसमें क्या था इंपॉर्टेंट, सब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का जो एरिया है उसका मोमेंट लिया अबाउट वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, उसका ऐड किया तो विच इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ टोटल एरिया अबाउट सेम एक्सिस, ओके। चलो इन नेक्स्ट लेक्चर विल सॉल्व प्रॉब्लम्स, ओके। चलो थैंक यू, बाय बाय।